Hello everyone. Today we will discuss next part of demand concept. We already discussed about the meaning of demand, quantity demand, and individual function of demand. Now we will discuss market demand function. We already learn about the demand function. Demand function means it is a functional relationship between quantity demand and its component. Now, market demand means what effect of falling factors on quantity demand, like population. It is a positive relationship between quantity demand and population. It's mean when population increase, quantity demand also increase. If we see young people is more in a country, demand of fashion goods and bikes will be rise. If a country have more females, the demand of female product also rise. If a country face the problem of old men, मीन्स जिस कंट्री के अंदर क्या है ओल्ड मैन ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर स्टिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, धोती की डिमांड बढ़ जाएगी. तो मीन्स डिपेंड ऑन द रेशो ऑफ पॉपुलेशंस, बट it is a positive relationship between quantity demand and population. More population, more quantity demand; less population, less quantity demand. Then climate. Climate is also influenced market demand. If climate is favorable, it's mean in summer season demand of cooler and AC rise, but demand of woolen cloth is decrease in summer season, because in summer season AC and cooler is favorable, but woolen cloth is not favorable. So if demand is favorable, quantity demand rise. If demand is climate is in favor, unfavorable, quantity demand fall. Income distribution. Income distribution means if a country have equal distribution, no more gap between rich and poor person, all persons spend their income without any fear, then quantity demand rise. If a country face the problem of unequal distribution, in which few person have large amount of Indian wealth, I mean a country's wealth, and a large section face the problem of poverty. So poor person only afford necessary goods. Rich person spent only few percentage of their income. Large amount will be saved. So quantity demand fall. In which equal distribution, quantity demand rise. If more gap between rich and poor person, quantity demand fall. This is a market demand function. Demand schedule. Here we are discuss about the demand schedule and curve. Demand schedule means it is a table showing a relationship between quantity demand at different prices. यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का. यहाँ पर क्या शो कर रहा है जी, डिफरेंट एंड प्राइस हैं और डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट एंड क्वांटिटी डिमांड है. इसी शेड्यूल को हम कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा वो डिमांड कर्व. इट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी कि जो डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है उसी की फिगर्स को, उसी के डेटास को यूज़ करके हम उसको कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं. तो डिमांड शेड्यूल मीन्स इट इज़ ए टेबल showing a relationship between quantity demand at different prices, and demand curve means it is a graphical presentation of demand schedule. There are two type of schedules and curve: individual demand schedule and market demand schedule. अब individual demand schedule means it is a table showing a relationship between quantity demand at different prices demanded by a consumer. मार्केट में मान लो एक ही कंज्यूमर है, तो उस कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइस पर क्या डिमांड है. लाइक इन एग्जांपल प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांड 40.
When price increase 1 to 2, demand of a consumer 40 to 30 less. Then price rise 2 to 3, demand क्या है 4 30 to 20. Then price rise 3 to 4, quantity demand 4 20 to 10. That is called a individual demand schedule. और यहाँ individual demand curve is same thing. It is a graphical presentation of individual demand schedule. We see in the diagram, x-axis shows number of commodity and it means quantity demand, and y-axis shows price. यहाँ पर क्या है प्राइस है P, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ कमोडिटी यानी कि क्वांटिटी डिमांड। अब तो यहाँ पर क्या कहता है जी, देखो कर्व के अंदर हमने देखा डिमांड कर्व डाउन हो रहा है। डाउन का मतलब क्या है, क्योंकि प्राइस एंड जो क्वांटिटी डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो नेगेटिव रिलेटेड है, तो एक दूसरे से नेगेटिव रिलेटेड। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या है कम हो रही है। प्राइस कम हो रहे हैं 4 3 2 1, तो क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है 10 20 30 40. इट्स मीन्स डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. लेट्स नेक्स्ट इज market demand schedule. Market demand schedule means it is a table showing relationship between quantity demand at different prices by all the consumer. Basic difference is here is all the consumer, वहाँ पर क्या था only single seller single buyer, यहाँ पर क्या all the consumers. When all the consumers demand curve elastic, demand show in the schedules price क्या 1 2 3 4 5, quantity demanded by A consumer 50 40 30 20 10, and quantity demanded by B person 70 60 50 40 and 30. In market total demand is 50 plus 70 120, 40 plus 60 100, 30 plus 50 80, 20 plus 40 60, 10 plus 30 40. It means total demand will be rise because सम ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज ए मार्केट डिमांड. तो यहाँ पर 3 कर्व बनाया हुआ है, पहले डिमांड ए पर्सन कर रहा है, फिर डिमांड बी पर्सन कर रहा है. तो दोनों की डिमांड एकदम नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि प्राइस पर वो उनकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है कम है कंपेयर टू दी मार्केट डिमांड. मार्केट मीन्स ए और बी दोनों को ऐड कर दिया गया तो मार्केट डिमांड आ गई. तो जो मार्केट डिमांड का कर्व है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का कर्व एकदम नीचे गिर रहा है. इस कारण से जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि वो नीचे के स्लोप उसका तेज़ी से गिरता है वो, और जो मार्केट डिमांड का स्लोप है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, वो होता है मोर इलास्टिक. इसलिए ये क्या है मार्केट है, ये क्या है मोर इलास्टिक है, क्या मोर इलास्टिक. और जो ये दोनों कर्व हैं ये दोनों क्या हैं लेस इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है. लेट्स टेक अनदर. वाई डिमांड कर्व नेगेटिव. अब क्वेश्चन क्या आता है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों है. हमने देखा कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे तरफ गिर रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन है. इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं. रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हमने पीछे चैप्टर में रीड किया हुआ है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि व्हेन मोर एंड मोर गुड्स कंज्यूम कंटिन्यू दैट्स गुड सेटिस्फैक्शन विल बी डिक्लाइन. अब यहाँ भी यही है, व्हेन मोर एंड मोर गुड्स एक्स इज कंज्यूम कंटिन्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स फॉल. जब मार्जिनलिटी फॉल हो गई है तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई है, मीन्स कंज्यूमर को वो कम सेटिस्फाइड कर रही है. तो कंज्यूमर इस रेट पर उस गुड्स को बाय करने के लिए तैयार नहीं होगा. जिस चीज़ से उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई है उस गुड्स को बाय करने के लिए तैयार नहीं होगा. हाँ, तैयार कब होगा? जब उसकी प्राइस को फॉल कर दिया जाएगा. तो कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय मोर गुड्स ओनली एट ए लोअर प्राइस. इस कारण से कर्व क्या हमारा नेगेटिव से हुआ. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था, कंज्यूमर तब तक गुड्स बाय करता रहेगा जब तक कि MUX इज इक्वल टू PX नहीं हो जाता. एक ही तरीका है MUX है. ये क्या कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी के अंदर.
कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स को तब तक बाय करता जाएगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी हो सकता है और ये पी एक्स भी हो सकता है। अगर सिंगल कॉमोडिटी है तो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, अगर टू कॉमोडिटी है तो एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई। नेक्स्ट है इनकम फैक्ट। इनकम फैक्ट क्या कहता है कि जो नॉमिनल इनकम है, एक पॉकेट मनी है एक व्यक्ति के पास, वो कांस्टेंट है। मान लो मेरे पास 20 रुपये हैं तो वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन जिस गुड्स को मैं बाय कर रहा हूँ उसके प्राइस कम हो गए। मान लो कि 1 रुपये था, उसका प्राइस 50 पैसे रह गया, तो मैं 20 रुपये से पहले 20 खरीदा था, अब मैं 20 रुपये की 40 परचेज करना शुरू कर दूँगा, तो मेरी क्या होगी, रियल इनकम बढ़ गई है। मीन्स नॉमिनल इनकम रिमेन सेम बट ड्यू टू फॉल प्राइस रियल इनकम राइज, देन क्वांटिटी डिमांड आल्सो राइज। अगर क्या प्राइस बढ़ जाएंगे, 1 से 2 रुपये हो जाएंगे, तो 20 रुपये 10 ही खरीदूंगा मैं। फिर प्राइस राइज, रियल इनकम फॉल, क्वांटिटी डिमांड आल्सो फॉल। इस कारण से डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। हमने पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स इज दैट गुड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर, लाइक कॉफ़ी एंड टी। अगर यहाँ पर भी हम देखें तो कंज्यूमर का फैक्ट क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट फैक्ट क्या कहता है, कंज्यूमर प्रेफर लोअर प्राइस गुड्स कंपेयर टू हायर प्राइस गुड्स। वो लोअर प्राइस गुड्स की को ज़्यादा प्रेफर करेगा। मान लो कॉफ़ी एंड टी है, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी को बाय नहीं करेगा, वो टी को बाय करेगा। तो टी क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट है, वो कम प्राइस पर अवेलेबल है। इस कारण से क्या है, सब्स्टिट्यूट फैक्ट मीन्स कंज्यूमर प्रेफर लोअर प्राइस ऑफ गुड्स कंपेयर टू हाई प्राइस गुड्स, लाइक व्हेन प्राइस ऑफ टी राइज देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी राइज। साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रीवियस एंड नाउ बाय दैट सेम गुड्स। सपोज करो मिल्क के प्राइस 50 से 40 रह गए, तो क्या होगा, जो ओल्ड कस्टमर थे उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो बंदे, जो पर्सन, जो कंज्यूमर पहले उसको मिल्क को बाय नहीं कर रहे थे, वो भी उसको बाय करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ओल्ड बायर बढ़ गए हैं, न्यू और आ गए हैं, तो दोनों तो मिला दो टोटल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड राइज। तो मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, डिमांड फॉर प्रेजेंट बायर्स एंड न्यू बायर्स राइज, देन टोटल क्वांटिटी आल्सो राइज। डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट मीन्स एक ही गुड्स के बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो घर के अंदर हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, वेस्टेज के लिए खर्च नहीं करेंगे। हम बचा बचा के इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम कर दिए तो जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं था तो हमने वहाँ भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो वी यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, देन क्वांटिटी डिमांड फॉल। As well as when price fall, we not only use for specific purpose, other use also, then quantity demand rise. So demand curve is a negative slope. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss directly to approach